Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Jharkhand Mukti Morcha patron and former Chief Minister Shibu Soren passed away in Delhi at the age of 81 following prolonged health complications. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut paid heartfelt tributes, recalling Soren's journey from a tribal heartland to the national political stage. Raut described him as no less than a god for the people of Jharkhand and shared that his Rajya Sabha seat was adjacent to Soren's, allowing frequent interactions. He noted that Soren's health had deteriorated in recent days and extended condolences on behalf of Uddhav Thackeray and the entire Sena family. Soren is remembered for his lifelong dedication to tribal welfare and his pivotal role in the Jharkhand movement. देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य, लेकिन वहां के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूं तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूं, उनको याद करता हूं और पूछता हूं उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति तबीयत खराब है। आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है। आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का हम कभी भूल नहीं सकते। देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमें Continuous rainfall across Uttar Pradesh has pushed the Ganga River past its danger mark of 71.26 meters, reaching 72.1 meters in Varanasi. Drone visuals reveal dramatic flooding, with all 84 ghats, including Dasha, Swamedh and a sea completely submerged. Religious rituals like Ganga Aarti and cremations have been shifted to rooftops, and elevated platforms of over 6,500 residents have been displaced, and 20 relief camps have been set up to provide shelter and aid. The National Disaster Response Force is actively conducting rescue operations, while district authorities have banned boat movement and intensified its sanitation efforts to prevent disease outbreaks.
Mahendra Dipendra Giri, custodian of the sacred Chari Mubarak, the holy mass of the Lord Shiva, announced the commencement of its final journey from Sri Amareshwara temple in Dashanmai Akhara, Srinagar. The ceremonial procession began on Dashmi and will proceed through spiritually significant stops. Pahalgam, Chandarwari, Sheshang and Panchantran. The pilgrimage will culminate on August 9, coinciding with Shravan Purnima and Raksha Bandhan, when the Chari Mubarak will be placed inside the Holy Amarnath Cave Shrine. This marks the spiritual climax of the 38-day Amarnath Yatra, which has drawn over 3.77 lakh devotees this year. श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और आज 4 अगस्त और ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर से हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज दशमी का दिन है और दशमी और एकादशी की रात्रि हम पहलगाम पड़ाव करेंगे। द्वादशी की रात्रि जो कि 6 अगस्त को है, हम चंदनवाड़ी विश्राम करेंगे रात्रि। उसके बाद 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतरणी और अंततः 9 अगस्त जो कि श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है, जिसका महात्म्य हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो वहाँ पर पहुंचकर छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज हम यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे। यहाँ सुरेश्वर मंदिर सुरयार में पूजन होगा, उसके पश्चात शिव मंदिर पंपुर, उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा अनंतनाग होते हुए मार्तंड तीर्थ, उसके बाद ऐशमकाम गणेश बल में पुल पार गणेश जी का पूजन करेंगे और गौरी शंकर मंदिर में पहलगांव में पूजन कर हम विश्राम जो छड़ी विश्राम स्थल है वहाँ हम तो आज की रात्रि, कल की रात्रि पहलगांव और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 अगस्त चंदनवाड़ी, 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतरणी और अंततः 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचे। जी, आप इस बार जो यात्री जाइए प्रसन्न है कि काफ़ी तादाद में सिचुएशन के बावजूद भी आ गए। जी, तो ये बल्कि सभी के लिए अनपेक्षित जैसा था, जो काफ़ी बड़ी संख्या 4 लाख से 4,10,000 के करीब तीर्थयात्री आए और उन्होंने दर्शन किए। श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और आज 4 अगस्त और ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर से हम शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज दशमी का दिन है और दशमी और एकादशी की रात्रि हम पहलगाम पड़ाव करेंगे। द्वादशी की रात्रि जो कि 6 अगस्त को है, हम चंदनवाड़ी विश्राम करेंगे रात्रि। उसके बाद 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतरणी और अंततः 9 अगस्त जो कि श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है, जिसका महात्म्य हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो वहाँ पर पहुंचकर छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज हम यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे। यहाँ सुरेश्वर मंदिर सुरयार में पूजन होगा, उसके पश्चात शिव मंदिर पंपुर, उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा अनंतनाग होते हुए मार्तंड तीर्थ, उसके बाद ऐशमकाम गणेश बल में। Independent MP Papu Yadav strongly criticized the Election Commission following its notice to RJD leader Tejasvi Yadav over alleged possession of 2 EPICs. He questioned the EC's credibility, calling it a Sandiga commission and likening it to Aladdin ka Chirag, implying arbitrary
powers. Yadav accused the EC and BJP of colluding to undermine the special intents of revision. Process and suppress the rights of Biharis, declaring Congress as the only viable alternative. He announced that Rahul Gandhi and the India Alliance would begin a statewide campaign from August 10, with planned visits extending to Katidar. ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिसटॉन्ग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी हो से मिलेंगे और उनके भैया राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग का, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब के आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। सर 8 तारीख को अमित शाह का यात्रा फिर से एक बार बिहार में आ रहे हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं है अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम है, सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। ये बीजेपी और मोदी। Bharat Adivasi Party MP Rajkumar Roat has strongly criticized the Rajasthan government over its response to the tragic roof collapse at a government school in Jalawar, which claimed the lives of 7 children. Speaking during a pre-planned event to mark International Tribal Community Day, Roat expressed disappointment over the substantial, stating that the announced 10 lakh rupees ex gratia was routine and insufficient. आदिवासी दिवस पर जलावड़ बता रहे हैं, कैसा कार्यक्रम रहा? ये आज विशेषकर पहले से ये था कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे, लेकिन इसी के बीच में ये जलावाड़ के अंदर एक जो बच्चों की घटनाक्रम हुआ, 7 बच्चे जिनकी डेथ हो गई, एक दर्दनाक हादसा हुआ, भयंकर हादसा हुआ, और शायद देश लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें शायद पहला हादसा होगा। तो इनके तहत जो सरकार ने अन्याय किया है, सरकार ने लिपापोती की है, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के 1 मिनट का मौन धारण करके जनता को बेवकूफ बनाया है। सरकार ने इस पीड़ित परिवारों के लिए किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया है। 10 लाख की जो घोषणा हुई है वो स्कीम के तहत है, वो स्कीम के तहत है। वो किसी रास्ते चलते हुए हादसा होता तो भी मिलना था वो तो सरकार ने क्या दिया? सरकार को लगता है ये आदिवासी हैं, ये पिछड़े हैं, दलित है, ओबीसी के लोग हैं, ये कमजोर हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव के वक्त इनको वोट बैंक बना देंगे, ये गलतफहमी में जी रहे हैं। अब लड़ना सीख गए हैं, समझना सीख गए हैं अपने हकों के लिए, और सरकार जिस तरह से सोच रही है, आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार से निवेदन किया है। हम आज कह रहे हैं कि हम राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं, हमें राजनीतिक नहीं करनी है।
लेकिन सरकार इन पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपया दे, सरकारी नौकरी दे, ठेके पे लगा रहे प्लेसमेंट एजेंसी वाला कभी भी निकाल देगा उनको। तो बेवकूफ बनाने का जो काम किया है, तो इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था। 10-12 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है आज आयोजन कमेटी ने। अगर इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो झालावाड़ के अंदर इन पीड़ित परिवारों के लिए धरना भी देना पड़े, धरना भी देंगे। जिस प्रकार से आप जो सभा संबोधित करते हैं, वहाँ कुछ आपके पास जो मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी यहाँ के नेताओं से। तर्क वितर्क होते, राजनीतिक कहे कि विचारधाराओं की लड़ाई भी होती है, लेकिन जैसे हम लोग आए, लड़ाई के उद्देश्य से कुछ लोग आए, फिर अंदर तक मंच तक आ गए, वहां के नारेबाजी करके जो लड़के रोके उनके साथ मारपीट किया। पुलिस प्रशासन के साथ भी उन्होंने हाथापाई, और एक जने को मैंने स्वयं ने देखा है, एक जने को उन्होंने लड़ भी मारा। उनके साथ जो डंडा था, जो झंडे में डाल रखा था, और मेरे तक मारपीट करने की कोशिश किया। ये तुच्छ राजनीतिक लोगों की मुझे उम्मीद नहीं थी झालावाड़ के पॉलिटिकल लीडर इस तरह से हरकतें करेंगे। अगर आपने न्याय दे दिया होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं होती। हमारे विधायकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को आने की जरूरत नहीं होती। ये दबाने की पॉलिटिक्स, तानाशाही पॉलिटिक्स लगा आज हमें, और कहे कि तुच्छ राजनीति के हिस्से का घटनाक्रम था आज। आदिवासी दिवस पर झालावाड़ बता रहे हैं, कैसा? The pilgrimage to Kedarnath in Rudraprayag, Uttarakhand resumed after a brief suspension caused by landslides and heavy rainfall. The national highway between surprising pilgrims must undertake 22 kilometers. Celebrating the holy month of Shravan, renowned sand artist Sudarshan Patnaik supplied goddess Parvati and the Kanva's sacred vessel carried by devotees. The sculpture showcases traditional iconography with Shiva's crescent, moon and flowing Ganga, and Parvati standing in serene dress. The piece carries a spiritual message. Om Namah Shivaya, may Mahadev bless us with strength, peace and devotion. Crowds have gathered to witness this blend of devotion and artistry. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed officials to ensure an atmosphere of peace and discipline throughout the Kanwar Yatra. In a recent review meeting, he stressed the need for stringent law and order measures, including drone surveillance, sound monitoring, and interstate coordination. He urged organizers and participants to respect traditional routes and refrain from any actions that could disrupt harmony, emphasizing the Kanwar Yatra as a symbol of faith, enthusiasm, and civic responsibility. कोई भी अफवाहबाज अचानक अफवाह नहीं पैदा करता है, रणनीति बना करके करता होगा। गांव के चौकीदार को गांव के अंदर घूमना होता है, वो तत्काल फोन से इसकी सूचना संबंधित थाने को दे सकता है, संबंधित चौकी को दे सकता है, PRB 112 को दे सकता है। दूसरा, बीट प्रणाली पर्व और त्योहार के दौरान तो हमें अनिवार्य रूप से इसको लागू करना चाहिए। आपको मालूम है अभी कावड़ यात्रा चल रही है।
कांवड़ यात्रा के दौरान इसका दुरुपयोग भी लोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अफवाह पैदा करेंगे तो जब कोई बाबरिया गिरोह या कोई इस प्रकार के किसी गिरोह के द्वारा कहीं कोई घटना अंजाम देंगी तो लोग ये समझेंगे साहब ये अफवाह है। आपराधिक घटनाओं को रोकना, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी स्थिति में अफवाह के कारण कोई निर्दोष भीड़ का शिकार न होने पाए। और मॉब लिंचिंग का आप जान रहे हैं कि माननीय न्यायालय भी बहुत सख्त है इस मुद्दे पर। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय हो सकती है। हम इस बात को On the concluding Monday of the sacred month of Sawan, Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited Sri Vedant Mahadev Mandir in Ashok Vihar to offer prayers and seek divine blessings. The temple, renowned for its Shivaling-shaped shikar and vibrant spiritual ambience, witnessed a surge of devotees participating in abhisheks and chanting hymns. CM Gupta's visit underscored the cultural and religious significance of Sawan Somavar, a day deeply revered by followers of Lord Shiva. Madhya Pradesh Cabinet Minister Kailash Vijayawagiriya visited the revered Sri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple in Ujjain on the fourth and final Monday of the Sawan month. During his spiritual visit, he acknowledged regional variations in the Sawan calendar, noting that while states like Rajasthan and Chhattisgarh conclude the month with this Monday, Maharashtra and Gujarat observe 2-day additional Mondays. Commenting on the temple and district administration, Vijayawagiriya praised the arrangements made for devotees, especially during the peak pilgrimage period at the Mahakaleshwar temple, one of the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva. Witnessed a surge of worshippers participating in the sacred rituals like the Bhasma Arati, seeking divine blessings during this auspicious time. राजस्थान और कुछ पार्ट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ आज 4 सोमवार हो गए, हमारे सावन खत्म हो गया, और महाराष्ट्र और गुजरात में आज से सावन चालू हुआ। नहीं, 2 हो गए उनके, 2 और बाकी है अभी। हमारे यहाँ तो 6 सवारी निकलती है, क्योंकि 4 तो यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों की और महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार 6, क्योंकि यहाँ पर सिंधियाओं का राज था, तो अपने हिसाब से 6 सवारी निकलती थी यहाँ पर, तो परंपरा चल रही है। पर मध्य प्रदेश की भीड़ अब कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और अब बढ़ेगी महाराष्ट्र और गुजरात की। अच्छा, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हर एक व्यक्ति को दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा घंटे 2 घंटे में हो, पर दर्शन सबके हो रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। The 77th batch of more than 3,000 pilgrims from across India reached Poonch
for the sacred Buddha Amarnath Yatra, receiving a warm welcome from local residents and Yatra organizers. At the base camp, the arrival marks a significant moment in the ongoing pilgrimage, which has seen enthusiastic participation despite challenging weather conditions. Devotees expressed gratitude for the arrangements. Indian Army Sub-Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma has responded sharply to Congress MP Priyanka Gandhi Vadra's proposed visit to the state, particularly to Dhubri district. While stating he has no objection to her arrival, Sharma claimed that Assamese women, especially those in self-help groups, are 100 times more advanced than Priyanka Gandhi and would defeat her in every sphere. He also criticized the Congress party's focus on Dhubri, alleging that they only recognize a section of religious minorities and ignore Assam's cultural icons like Kamakya Temple, Bhatta Drava, Chara Devi, Moidams, and Rangdor. Sharma added that if Priyanka truly wanted to connect with Assam, she should begin her visit at these heritage sites. The remarks come amid rising political tensions ahead of the 2026 Assembly elections, with the Congress leaders planning multiple visits to the state as part of their outreach strategy. Priyanka Gandhi অসমলৈ আহক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল প্ৰিয়ংকা গান্ধীতকৈ 100 গুণে আগবঢ়া গতিকে অসমৰ মহিলা বিশেষকৈ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিমান অসমৰ মহিলা আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সবতে পৰাজিত কৰি দিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী কম্পিটিশনত আহিবই নোৱাৰে আমাৰ মহিলাই লাড়ু বনায় আমাৰ মহিলাই পিঠা বনায় আমাৰ মহিলাই খেতি পথাৰত গৈ কঠিয়া ৰুৱে আমাৰ মহিলাই ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঠায় কলেজত পঢ়ায় আমাৰ মহিলাৰ লগত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ক'ত কম্পিটিশন কৰিব পাৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমলৈ আহক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল প্ৰিয়ংকা গান্ধীতকৈ 100 গুণে আগবঢ়া গতিকে অসমৰ মহিলা বিশেষকৈ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিমান অসমৰ মহিলা আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সবতে পৰাজিত কৰি দিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী কম্পিটিশনত আহিবই নোৱাৰে আমাৰ মহিলাই লাড়ু বনায় আমাৰ মহিলাই পিঠা বনায় That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.